السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طیب سیف۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پر حکومت پنجاب کی جانب سے دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ رمضان بازاروں کے اندر بہت ساری سہولیات فراہم کر رہے ہیں، جہاں پر عوام کو سبسیڈائز نرخوں کے اوپر تمام اشیاء خوردونوش فراہم کی جا رہی ہے، جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں چینی، آٹا، گھی، کھجور، دیگر جو پھل اور سبزیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو سستے ریٹس کے اوپر یہاں پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ سبسڈی نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف آٹا اور چینی کے اوپر نظر آ رہی ہے کہ عام مارکیٹ کے اندر جو چینی 85 روپے فی کلو کے حساب سے، اوپن مارکیٹ میں 105 روپے فی کلو کے حساب سے، یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر یہ تقریباً 68 روپے فی کلو کے حساب سے، جبکہ رمضان بازار میں سب سے سستی چینی 65 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، اور عام شہری اسی چینی کو خریدنے کے لیے جوک در جوک رمضان بازار کا رخ کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ رمضان بازار میں آتے ہیں تو ان کو کچھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ 1 کلو چینی لینی ہوتی ہے انہوں نے، اور ان کو تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے ان کو 1 کلو چینی فراہم کی جاتی ہے۔ مختلف لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا اماں، یہ بتائیے گا آپ کہ یہاں پر چینی لینے آئی ہیں، کتنی چینی مل رہی ہے آپ کو؟ کلو ہی بھائی مل رہی ہے چینی۔ تو کتنی دیر کھڑے ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو 1 کلو چینی ملی؟ 1 کلو کتنی دیر پہ کھڑی ہوتے ہیں؟ سوجی مل سے آتے ہیں 20 روپے، تو ویسے آتے کرایہ لگتا ہے 20 جاتے لگتا ہے، فائدہ تو نہیں ہے، بس وہ دکانوں پہ ویسے مل نہیں رہی، ادھر سے مل رہی ہے۔ چلو 2 کلو دے دیں تو پھر بھی روزے کے ساتھ مصیبت نہیں پڑتی۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ اتنی دور سے آئی ہیں، آدھا چینی ہم نے زیادہ؟ نہیں بتایا، بس انہوں نے کہا بھی کلو ملے گی، کلو لے جاؤ۔ بےزتی کرانے سے بھائی بہتر ہے یہ 1 کلو لے کے چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو روزانہ آتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں؟ نہیں روزانہ نہیں بھائی، روزے کے ساتھ روزانہ نہیں آ جاتے، اتنی دور سے تو 50 روپے تو کرایہ ہی لگتا ہے، کیسے آئیں؟ تو 1 کلو چینی سے آپ کے گھر کا کتنے دن کا سرکل چلتا ہے؟ 2 دن بھی نہیں چلتا، ابھی روزے ہیں نا، رمضان میں بھی شربت بناتے ہیں، چائے وغیرہ بناتے ہیں، دہی میں ڈالتے ہیں بچے، پھر نہیں اتنا لگتا۔ نہیں لگتا ہے اتنا۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ ہمارے ساتھ اور خواتین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں آپ، کتنی چینی مل رہی ہے آپ کو؟ جاوید پلون سے پہلی مرتبہ ہی آئی ہیں۔ پہلی مرتبہ آئی ہیں، تو کتنی چینی کے پیکٹ یہاں پر مل رہے ہیں آپ کو؟ تو سننے میں آیا 1 ہی پیکٹ ملتے ہیں۔ تو 1 پیکٹ سے آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا آج کا تو۔ آپ بتائیے گا 1 کلو چینی سے آپ کے گھر کا گزارا ہو جائے گا ایک دن؟ بس 1 دن کا تو ہو جائے گا نا، 1 دن کا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ روزانہ لینے آئیں گی چینی یہاں پر؟ بس روزانہ تو نہیں، جیسے ہی روزہ نہیں ہوتا تو ہی آ جاتے ہیں لینے۔ تو پھر کیا کیا کریں گے آپ آنے والے دنوں میں، کیونکہ 1 کلو چینی سے تو گزارا نہیں ہو رہا، تو پھر یا تو شام کو دوبارہ چکر لگائیں گی، روزانہ آئیں گی، اور کیا؟ دوبارہ چکر تو نہیں، بس جیسے ہی ہے گزارا، آپ تازی کمانے والے ہیں، جیسے ہے تو پھر باقی تازی کمانے والے ہیں، بازار میں ہیں جی۔ آپ بتائیے گا 1 کلو چینی سے آپ کے گھر کا سرکل چلتا ہے ایک دن کا؟ ہاں جی۔ مطلب کہ روزانہ پھر لینے آئیں گی چینی آپ، کیا کریں گے آپ؟ باہر سے تو بڑی مہنگی مل رہی ہے۔ جب ضرورت ہوگی نا تب لینے آئیں گے۔ نہیں بارے آتا ہے کہ روزانہ آنا، یا جب ضرورت ہو، یا اکٹھی بندہ 5 کلو لے کے چلا جائے؟ جی 2 کلو لے کے جائیں گے ساتھ۔ ماں جی آپ بتائیے کہ تھوڑا سا چینی کے حوالے سے، کہ چینی یہاں پر صرف 1 کلو مل رہی ہے، 1 کلو چینی سے گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں تھی کہاں، تو کیا کریں گے آپ پھر؟ اور کیا کروں، آخر مجبوری تو آ دیتا ہے، یہ کیا کرے گے، گننی تو پوندی ہے۔ تو باہر سے کیوں نہیں لیتے آپ چینی؟ باہر نہیں ملتی، وہ اکٹھی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کرتے؟ نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ آدن سارے کول کوئی نہیں، مہنگی ہے سارے کول کوئی نہیں، 110 روپے کلو، اگر ہے بھی صحیح تو 110 روپے کلو دے دیں، نہیں دیں گے۔ اگر لینی تو 110 روپے کلو لو، ورنہ ختم۔ جی ہاں نہیں دیں گے، 110 روپے کے متلے نہیں دیں گے، کیا کریں گے؟ پھر یہاں پر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے آپ کو؟ مزدور جی ہاں لائن لگتے تو کلو گھن گئے سے شام سویر پوری بکھی تھی تک پتہ تو ہے۔ روزانہ چینی لینے آتے ہیں یہاں پر آپ؟ نہیں میں دو جڑے کوئی نہیں، میں کل ہی آئی آج ہی آئی کلو کل گھن گیا، کلو آج گھن گئی۔ جی انتظامیہ کی جانب سے سختی تو کی گئی ہے کہ چینی کو زائد نرخوں کے اوپر نہیں بیچا جائے گا۔ جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جی وہ میں کہ مزدور کیا کر سکتے، کچھ نہیں تھی سکتی، میرا میاں بیمار ہے، دل کی تکلیف ہے سی، میں کر نہیں سکتی، لوگوں نے گھر کا کام کرتے پوری جیری کو تھی نہیں پی نا، میرے کنے نہیں تھی سکتی۔ مطلب آپ نے حکومت نے جو انتظامات کیے ان سے مطمئن نظر نہیں آتی؟ نہ کچھ نہیں نظر آتی، نہ کچھ ہے کوئی مطلب کہ تعاون کرے تو نہ کوئی دے دے، کچھ ہے جو بھی کر رہی ہیں آپ خود کر رہی ہیں خود اپنا سارا؟ کریں گے، خود کریں گے، اللہ گواہ ہے، روزے نال کھڑیاں، حکومت سے کوئی التجا کرتی ہیں، اپیل کوئی کرتی ہیں؟ شک نہ، کوئی شک نہ، اللہ گواہ ہے، تو روزے نال کھڑیاں۔ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ بہاول چوک نو۔ اچھا بہاول چوک سے آئی جی ہیں ہاں آپ؟ جی ہاں جی ہاں جی تو کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اور بیٹی نہیں ہے جو آپ کو کما کے دے؟ میرا بیٹا بیٹے نے شادی کر دی ہے، بیٹا ہے کہ تو گاؤں رہتا ہے،
मेरे कोल नहीं रहा सही वो अपने बच्चे दे कोल ते अपने कोल हुंदे निक्के निक्के बच्चे हैं उन्हें नहीं जो पूरी कर सकदा सही नहीं तो पूरी इसलिए आप अपना काम खुद पट्ठे कर ते सिर लान थपेंदे हाँ हाँ ते ओ जरा तो मजदूरी आपे करते तो टुकर दे ग्रांड उखा पूरा थींदा वाला ठीक है ना नहीं पूरी पौंदी अब्बा नहीं पूरी पौंदी कर नहीं सकदे पूरी नहीं थी सकदी जी तमाम लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए थे कि हम रेट को कंट्रोल करेंगे। उस रेट को कंट्रोल करने का ये नतीजा निकला है कि आम शहरियों को, आम लोगों को बाज़ार के अंदर चीज़ें मिल ही नहीं रही। अगर मिलती हैं तो महंगे दामों में मिलती हैं। अगर हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी भी महंगे दामों में मिलती है। शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताइएगा, आप रमज़ान बाज़ार की जो इंतज़ामात हैं, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इनसे मुतमिन नज़र आ रहे हैं? यहाँ पर घी, चीनी, आटा सस्ता मिल रहा है? बाज़ार से 10 रुपये 20 रुपये कम है कीमत। रूह अफ़ज़ा मैंने लिया उसके भी कम है और घी लिया उसके भी कम है, लेकिन वो बाकी जो सामान है खाने पीने का उसमें जो है ना वो क्वालिटी सही नहीं है। क्वालिटी है मतलब दालें ठीक नहीं है, क्या हुआ? लो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं ना, मतलब अच्छी क्वालिटी वाली नहीं है जो मतलब कि बंदे को सही उसका जो है ना उसका रिज़ल्ट मिले खाने पीने में। बस वो गुजारा किया हुआ है इन्होंने। गुजारा किया हुआ है। बाकी चीनी भी 1 किलो दे रहे हैं सिर्फ एक आदमी को, वो 1 किलो तो 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। ये जो लाइनों में लगने के बाद 1-1 किलो चीनी से गुजारा हो कैसे सकता है लोगों का? लोग अपना ज़्यादा टाइम तो यहाँ गुजार जाते हैं। हाँ भाई, 1 किलो चीनी के लिए बंदा कितनी दूर से आए यहाँ पे लेने के लिए, कम से कम तो 4-5 किलो देनी चाहिए ताकि लोग तसल्ली से रोज़े अपने रख सकें। बाकी आटा जो है वो उसकी क्वालिटी खाने के बाद पता लगेगी कि भी क्या क्वालिटी है जो 375 रुपये में दे रहे हैं, वो भी लिया है हमने, वो बाद में पता लगेगा। तो किसी से आपने सुना था इस आटे के बारे में? किसी ने बताया था उस आटे के बारे में कि आटे की क्वालिटी ये वाली है? नहीं, आटे के बारे में सुना तो यही है कि अभी उसकी क्वालिटी सही नहीं है, रबड़ की तरह रोटी होती है, खा नहीं सकते। बूढ़ा आदमी मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं खा सकता ना, तो उसमें यह है क्वालिटी अगर सही होगी तो वो जो है ना सही चीज़ होगी, वरना जो है ना बस आवाम को ऐसे ही जो है ना वो कह रहे हैं पागल। क्वालिटी का इशू है। जी भाईजान आप बताइएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर चीनी 1-1 किलो यहाँ पर लोगों को मिल रही है, आप यहाँ पर तमाम तर मामला को देख रहे हैं, आखिर क्या वजह है? चीनी 1 किलो दे रहे हैं, पहले दिन तो 2 किलो दी गई थी। ये हो लोगों को पता क्या मसला है, हमको तो नहीं पता, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, लाइनों में लगते हैं, काफ़ी देर खड़े होते हैं, तो आपने आला हुकाम को इस हवाले से बताया है कि यहाँ तो जल्दी चल रहा है, टेंशन नहीं है, काम फटोफट चल रहा है, आवाम परेशान नहीं है। आवाम परेशान नहीं है मतलब उनको ज़्यादा देर नहीं खड़ा होना पड़ता? नहीं खड़ना पड़ता। आप बताइएगा यहाँ पर कितनी देर खड़ा होना पड़ता है किसी शहरी को चीनी लेने के लिए? सर ज़्यादा देर वेट तो नहीं करनी पड़ती, नंबर बाय नंबर साथ चला रहे हैं और हम इनको SOP भी फॉलो करवा रहे हैं जैसे कि आपके सामने है, और इतनी देर हम इनको रुकने भी नहीं देते हैं। ड्यूटी भी बड़ी बेहतरीन चल रही है, तमाम तर चीज़ें बड़ी बेहतरीन चल रही हैं। अब आ जाते हैं हम सब्ज़ियों की जानिब कि सब्ज़ियाँ भी कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि सब्ज़ियाँ भी बड़ी सस्ती दी गई हैं, लेकिन सब्ज़ियों के हवाले से हम बात करेंगे बाद में। यहाँ पर अब हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं, अशिया खुर्दन अशिया हैं, फल हैं, उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो हुकूमत ने जो एक फ़ैसला किया था, जो एक वादा किया था, दावा किया था, वो कितना पूरा हुआ है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की थी चीनी की, आटे की और इन तमाम तर चीज़ों की। अब हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से एक और दावा किया गया है कि हमने जितनी भी रमज़ान बाज़ार के अंदर सब्ज़ियाँ हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, वो भी सस्ती फ्राहम की हैं और एक खूबसूरत से स्टॉल्स रमज़ान बाज़ार के अंदर, सोलो बाज़ार के अंदर यहाँ पर कायम किए गए हैं। लेकिन इन रमज़ान बाज़ारों के अंदर, इन सोलो बाज़ारों के अंदर जहाँ पर सब्ज़ी के और फलों के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पर हमें रश दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि चीनी और आटा जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर तो शहरियों की एक लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई देती हैं। लोग आते हैं, वहाँ से चीनी और आटा लेते हैं और चले जाते हैं, जबकि जो फल और सब्जियों वाली जगह है वहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई रश नज़र नहीं आ रहा। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, चीज़ें उस हिसाब से नहीं ले रहे? अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि आपके पास जो रेट हैं वो बाहर की निस्बत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर, आखिर क्या वजह है? यहाँ पर लोग आपके पास नज़र नहीं आ रहे? लोगों का रुझान जो है ना ये असर की नमाज के बाद होता है, क्योंकि शहरदारी का मसला है। यहाँ कोई बाहर का कस्टमर तो है नहीं, सारा शहर का है। लोग इस टाइम दफ्तर भी हो गए, आराम कर रहे हो, रोज़े रख के सो गए, जिनकी छुट्टियाँ हैं वो रोज़े रख के सो गए। लेकिन रेटों का तो हमारे पास बहुत फ़र्क है। बाहर जो सेब 200 रुपये किलो बिक रहा है वो हम 170 रुपये दे रहे हैं। खरबूजा जो 65 रुपये किलो बिक रहा है वो हम 50 रुपये किलो दे रहे हैं। केला जो 150 बिक रहा है वो हम 120 रुपये दे रहे हैं।
हमारे पास रेटों का बहुत फ़र्क है और क्वालिटी एक नंबर है हमारे पास। माहौल के हिसाब से कस्टमर भी है, ये बात नहीं है, बहुत कस्टमर है। अभी तो चीनी आटे की तरफ जोर है लोगों का, गरीब लोग है, शहर का मसला है, अपना थोड़ी देर से दुकानदारी होती है। बहरहाल अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है। माहौल तो ठीक है। आपने खरबूजे की बात की, आप खरबूजा 50 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से खरबूजा 65 रुपये है। आपने सेब की बात की है कि आप 175 रुपये बेच रहे हैं, सरकारी रेट के हिसाब से 185 है, आप सरकारी नर्ख से भी कम बेच रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार को पता नहीं है कि क्या रेट चल रहा है बाजार में, आप कुछ हो बेचिए यार। इसका जो हम बेच रहे, हर दुकानदार नहीं बेच रहे, ये हम 12 महीने जो लोग हम बैठे हैं ना इस दुकानों में, जैसे बाजार जला था तो हम लोग यहीं बैठे थे, तो हम ये लोग कस्टमरों को जानते हैं। ये हमारी अपनी तरफ से सदर इशफाक मेरा भाई है, उसकी वजह से हम उन्होंने खास ख्याल करा है कि जिस इंसान के पास गुंजाइश ना हो, कोई जितने भी पैसे दे तो उसे फरूट देना है। आपने किसी से कोई बहस नहीं करनी, अपनी तरफ से भी रिलीफ दे रहे हैं हम आपको। गवर्नमेंट का मसला नहीं है, गवर्नमेंट का रेट यही है, बाहर भी यही रेट है। गवर्नमेंट का 205 रुपये है तो यहाँ 185 दे रहे हैं वो, लेकिन ये हम अपनी तरफ से बेनिफिट दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, कारोबार है, कस्टमर अच्छा है, हमारा 12 महीने का सिस्टम है, हम ग्राहक को अपनी तरफ से रिलीफ दे रही है। अच्छा ये बताएं कि कौन सा ऐसा फल है जो रमज़ान में आके सस्ता हुआ है, महंगा नहीं हुआ? रमज़ान में आके जो सबसे सस्ता फल हुआ है वो हुआ है खरबूजा। इससे पहले खरबूजा 150 रुपये बिक रहा था, 200 रुपये बिक रहा था, क्योंकि फ्रूट की आमद भी नहीं है इस टाइम, सीज़न भी नहीं है कोई। केला है, केले का सीज़न नहीं है, सेब है वो सीज़न आउट है, किन्नू है, कोई भी है, अनार आ रहा है वो बाहर का आ रहा है, अंगूर आ रहा है वो बाहर का आ रहा है। इस वजह से अब सब्जियां देख ले आप, बिल्कुल कोड़ियों के भाव है। पहले टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा था, अब टमाटर 30 रुपये किलो है। टमाटर 30 रुपये किलो है जी। फलों की बात हमने कर ली है, अब बात आ गई है सब्जियों की। तो सब्जियों के हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें शहरी नज़र आए हैं जो चीज़ें ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। रमज़ान बाज़ार के अंदर आप आए हैं यहाँ पर, तो चीज़ें कितनी सस्ती आपको यहाँ पर मिल रही हैं? कोई मुतमिन नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ जी माशाल्लाह जी, बाजार से तो कुछ सस्ती चीज़ है। तो कितना फ़र्क आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है कि फलों के हिसाब से? 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये का फ़र्क महसूस होता है। अगर आप यही चीज़ें मंडी से लेने चले जाएँ तो फिर फ़र्क नज़र आता है आपको या नहीं नज़र? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुतमिन है आप यहाँ से? हाँ जी। आज आपने क्या कुछ लिया है यहाँ से? अभी लेने आए अभी। अच्छा अभी ले रहे हैं आप? तो ये जो रेट लिखे हुए हैं हुकूमत के, ये ठीक है रेट? बिल्कुल सही लगे, बल्कि बाजार से तो कम है ना। बाजार से कम है, सब्सिडी नज़र आ रही है आपको। क्या लेने आए हैं आप, क्या देखें? मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन अली। आज मैं इधर शॉपिंग करने आया हूँ इफ्तारी के हवाले से, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ आती मैं तो यहाँ की कीमतें देख के हैरान रह गई हूँ। यहाँ लिखा हुआ है सस्ता रमज़ान बाज़ार, हुकूमत हमें रिलीफ दे रही है। आप मुझे बताएं हुकूमत हमें किस बात का रिलीफ दे रही है? आप चीनी के बूथ पे चले जाएं, वहाँ एक बंदे को 1 किलो चीनी दे रहे हैं, ये पूरा घंटा एक लाइन में जलील करके एहसान कर रहे हैं हम पे। आप मुझे ये बताएं हमें किस चीज़ का रिलीफ मिल रहा है यहाँ? अच्छा अब मैं ये यहाँ खरबूजा लेने आया हूँ, मैं सारा बाज़ार में मैं रोज़ मैं धड़ी खरबूजा ले जाता हूँ, सारे मुझे जो है 60 रुपये तो दे ही नहीं रहा ना कोई, 50, 100 का 2 किलो, 400 का धड़ी भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ कोई 60, कोई 65। अगर इनसे कह दो कि अगर हमें वहाँ बाहर से इतना रेट मिल रहा है, कहते हो ही नहीं सकता, वो 2 नंबर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं अगर वो 2 नंबर कर रहे हैं तो आप 1 नंबर है, तो आप बताएं आप हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं? अगर आप लोग 1 नंबर दे रहे हैं तो फिर आप हमें रिलीफ देना। यहाँ आप आ जाएँ, कोई अथॉरिटी आए, कोई सर्वे करें, यहाँ किसी बात का रिलीफ नहीं है। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और यहाँ किसी बात का कोई रिलीफ नहीं है। सब्जियाँ आपको यहाँ पर सस्ती मिली हैं, सेब सस्ता मिला है, केले आपको सस्ते मिले हैं यहाँ पर? मैंने वैसे सेब का तो मेरा लेने का इत्तेफाक नहीं हुआ। सब्ज़ी मैं यहाँ से लेना पसंद ही नहीं करता। ये क्या सब्ज़ी यहाँ लो क्वालिटी की सब्ज़ी होती है, अगर ए क्वालिटी की सब्ज़ी है तो यही रेट हमें हमारे पास मिल रहा है। वहाँ हमारे साथ सब्ज़ी वाला बैठा है, हमें वो ये रेट दे रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी दूर आके? या ना ये हमें रिलीफ दें सब्ज़ी में, हमें सब्ज़ी कम दें, फिर तो हम यहाँ आएँ। जब हमें वही चीज़ मिल रही है तो हम वहाँ से क्यों ना लेंगे बात? आपको आम बाज़ार में और रमज़ान बाज़ार के अंदर कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं? बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि यहाँ ज़्यादा आवाम को ज़लील किया जा रहा है। मैं बाहर जाऊँगा, मुझे चीनी वो इज़्ज़त से मुझे जितनी चाहेंगे इससे यही रेट मिल जाएगा। यहाँ पर एक लाइन में ज़लील करके ये हमें 1 किलो चीनी दे रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? हमें शनाख्ती कार्ड भी देख रहे हैं आपको? बिल्कुल देख रहे हैं, ये कोई मजाक बनाया हुआ इन्होंने। अब ये तो हम एक किस्म का हमें गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं ना। अभी आओ जी हमारे पास घंटा लाइन में ठहरो, आप घंटा लाइन में ठहर के 1 किलो चीनी, तो अब एक इज़्ज़तदार आदमी आएगा? कभी भी नहीं आएगा। इज़्ज़त नफ्स अलग से मजरू हो रही है, चीज़ें भी ठीक नहीं मिल रही। बिल्कुल आवाम के साथ मजाक हो रहा है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, सब्ज़ी वाले से पूछेंगे। जी सब्ज़ी वाला ये मामला देख सकते हैं आप, हमारे पास यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तमाम तर सब्ज़ियाँ यहाँ पर लगी हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जब हम इन शहरियों से, इन दुकानदारों से बात करते हैं तो ये जो तमाम तर रेट्स हैं, इन रेट से सस्ती समहाव बेच देते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें इंसामिया ने जो रेट दिया है उस रेट से हमें सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं मंडी से।
اور ہم اس سے بھی زیادہ سستے ریٹ کے اوپر یہاں پہ سمہاؤ فراہم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت کی جو گرپ ہے اس رمضان بازار کے اندر بھی ہمیں آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ شہری ہیں وہ مطالبہ ہی ویسے ہی کرتے ہیں اور ویسے ہی ان کی حال دہائی چل رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عام دنوں میں جو ہمیں ریٹ ہمارے بازاروں کے اندر ملتا ہے وہی رمضان بازار کے اندر مل رہا ہے، کوئی خاص فرق ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا۔ کچھ اور اچھا ماں جی یہ بتائیے گا، آپ نے سبزی خریدی ہے یہاں پر، تو کوئی سبزی آپ کو یہاں پر سستی ملی ہے یا مہنگی ملی ہے؟ سبزی کا تو تقریباً وہی ریٹ ہے، مجھے تو نہیں خاص نظر آیا۔ مطلب جو بازار میں ریٹ چل رہا ہے وہی سبزی یہاں پر ایسی ملی ہے؟ ہاں جی، کوئی خاص فرق نہیں ملا آپ کو رمضان بازار کے اندر، کوئی ریلیف ملا ہو؟ بس اب ایسے ہی ہے، گاؤں میں بھی گلیوں میں بھی جا رہی ہے، 40 روپے کلو پالک ہے، ادھر بھی وہ 40 ہی لگائی ہے انہوں نے۔ مطلب کہ کوئی 30 روپے نہیں ملی، کوئی 35 نہیں میں نے وہ لی نہیں، اور کچھ بس پالک لیا اور تو کچھ لیا۔ اچھا بھائی جان آپ بتائیے گا، یہاں پر سبزی لینے آئے ہیں، کوئی آپ کو ریلیف ملا ہے رمضان بازار کے حوالے سے؟ عام بازار سے کافی عام بازار سے آپ کو ریلیف ملا یہاں پر؟ کیا چیز لے رہے ہیں آپ یہاں سے؟ یہاں سے میں نے یہ شملہ مرچ لی ہے، سبز مرچ اور دھنیا وغیرہ لی ہے۔ تو آپ کو سستا ملا یہاں پر آ کے؟ تو باقی اور کسی چیز کے حوالے سے، باقی کریلا دیسی کا ریٹ لکھا ہوا ہے، باقی چیزوں کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ بازار سے اچھا ہے، بازار سے کوالٹی کے حساب سے اور قیمت کے حساب سے مناسب۔ مطلب آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں یہاں پر؟ تمام تر لوگوں سے ہم نے یہاں پر بات کی ہے، ملا جلا سا رجحان یہاں پر سامنے آ رہا ہے، کوئی یہاں پر مطمئن نظر آ رہا ہے کسی کو، جبکہ تمام تر جو قیمتیں ہیں یہ عام بازار کے حساب سے ہی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس سے واپس آ کے ہم جانیں گے کہ حکومت نے ایک اور ریلیف بازار قائم کیا ہے، بلکہ ریلیف سٹور قائم کیے ہیں، وہ ہیں یوٹیلیٹی سٹور۔ آخر یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر جا کے عوام کو کس طرح کا ریلیف دیا جا رہا ہے، انتظامیہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے، ان تمام تر چیزوں کا احاطہ ہم وہاں پر بھی کریں گے کہ وفاقی حکومت نے کیا پنجاب حکومت کے طرز اوپر پنجاب حکومت کو فالو کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دیا ہے یا کچھ الگ سے کچھ چیزیں کی ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہاں سے چلتے ہیں ہم یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا وہاں پر بھی صرف باتیں ہیں اور عوام وہاں پر بھی شکوہ کرا نظر آتے ہیں۔ یہاں پر لیتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر بھی ایک وسیع سبسڈی کا اعلان کیا ہے، اور خاص طور پر جو 19 اشیاء ضروریہ ہیں ان کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے، جس میں گھی، چینی، آٹا، لال شربت، کھجوریں، چینی کی چائے کی پتی اور وہ تمام تر چیزیں جو کہ رمضان کے اندر استعمال ہوتی ہیں، دالیں، چاول اور بیسن، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے۔ لیکن یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر شاید آٹے کی اس حساب سے ہمیں قلت دکھائی نہیں دیتی، بعض اوقات شارٹیج ہو جاتی ہے، لیکن چینی اور گھی جس کے اوپر سب سے زیادہ سبسڈی دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹور کی جانب سے، وہ یہاں پر کافی حد تک ہمیں کم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جو یوٹیلیٹی سٹور کا اپنا برانڈ ہے وہ بھی یہاں پر نہیں ملتا۔ چینی کیونکہ عام مارکیٹ کے اندر نایاب ہو چکی ہے، اس کی قلت ہے، اور جب یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر آ کے ان کو 68 روپے فی کلو ملتی ہے تو عوام کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم چینی یہاں پر خرید لی جائے، لیکن کبھی ان کو ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ تو اس وقت ہم ایک یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر موجود ہیں، عام شہریوں کے تاثرات یہاں پر جانیں گے، اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹور کی انتظامیہ کی کیا اس پہ موقف ہے ان تمام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں اشیاء خریدنے کے لیے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے چیزیں خریدی بھی ہوئی ہیں اور کافی لوگوں نے یہاں پر اپنے کافی دنوں کا راشن اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ کام نہیں ہو رہا کہ کوئی ایک دن کی یا 2 دن کی چیزیں خریدنے کے لیے آ رہا ہے، بلکہ جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی ضرورت ہے، اس کے حساب سے چیزیں خریدتا ہوا ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں ان چیزوں کی کوالٹی کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ سستی مل رہی ہیں آپ کو؟ جی ہاں سستی مل رہی ہیں، پہلی مرتبہ لینے آئے ہوئے ہیں، ابھی لیں گے تو معلوم ہوگا زیادہ۔ چینی کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے شہر کے اندر، تو چینی آپ کو یہاں پر کتنی سستی دکھائی دے رہی ہے؟ اس کی کوالٹی سے مطمئن ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھی ہے۔ تو ایک بندے کو کتنی چینی مل رہی ہے؟ یہ بھائی ہم پہلی مرتبہ لے رہے ہیں سامان۔ مطلب آپ کو جو ایک یہ تھیلا دیا انہوں نے، ایک پیکٹ دیا بس؟ نہیں میں پہلی مرتبہ لے رہا ہوں۔ پیکٹ ہی ایک لیا آپ نے؟ جی ہاں۔ جی سر آپ بتائیے گا یہاں پر کیا حساب کتاب ہے، کیسے کیا سبسڈی مل رہی ہے؟ حساب کتاب تو بہت اچھا ہے، یہاں پر ہر چیز ہے، چینی بھی ہے، گھی بھی ہے، آٹا بھی ہے، صرف ایک آٹا ہے ان کے پاس آٹا۔ میں صبح بھی آیا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آنا دوپہر کے ٹائم، تو پھر میں اب آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ابھی آنے والا ہے آٹا، تو آٹا دیکھو آئے گا پھر ان سے آٹا۔ باقی چینی، گھی، پتی، ہاں ہر چیز ہے گئی۔ باقی برانڈڈ آئٹم جتنے بھی ہیں وہ بھی تمام؟ ہاں جی ہاں جی سارے ہیں ان کے پاس۔ تو آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا کہ عام بازار سے شاپنگ کرنے میں اور یہاں سے شاپنگ کرنے میں؟ ہاں جی بہت ہوا ہے فرق۔
चीनी वैसे रेट जो है 100 रुपए का है, इधर 68 रुपए किलो है सार, तो इधर अच्छा है। घी कैसा रहा यहाँ पर? घी भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। घी के भी मैंने जो है वो 2 पैकेट लिए हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रह गया। सर आप बताइएगा, आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर सहूलत मिली है, क्या क्या कुछ लिया है आपने यहाँ पर सहूलत बताइए? मैंने घी लिए, चीनी ली है, मिर्च वगैरह लिए हैं, और साबुन वगैरह लिए है, ये दालें भी लिए हैं, बेसन भी लिया है। तो आपने पूरे माशाल्लाह पूरे महीने का राशन लिया है, यही चीज़ें आप पहले भी लेते रहते होंगे, तो आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ है अब इन चीज़ों का, या जब हम बाज़ार से चीज़ें लेते हैं तो क्या फ़र्क महसूस हुआ? बस कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें अब नहीं ली है ना, वो उनको पता नहीं रेट का क्या है। जैसे बेसन नया लिया है, दाल लिए हैं, बाकी चीनी घी वगैरह ये तो इसमें तो फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी कि उन्होंने बहुत रिलीफ दिया है आम आवाम को, तो रिलीफ नज़र आया आपको यूटिलिटी स्टोर पर? हाँ जी, रिलीफ तो है, रिलीफ नज़र आया है। जी सर आप बताइएगा, आपको यहाँ पर रिलीफ नज़र आया है, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं यहाँ पर? हाँ, अब सस्ते मिल जाए इसीलिए हम यहाँ हैं, कुछ ना कुछ फ़र्क है दुकानदार से, यहाँ कुछ सस्ता मिलता है इसलिए। आम चीज़ों से सस्ता मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा माँ जी आप बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर सस्ती मिल रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें लेने आई हैं आप यहाँ? बस चीनी सस्ती मिल रही है और दालें वगैरह कुछ अच्छी मिल रही हैं, और जो चावल वगैरह हैं वो जी वो लेने आए हैं। चावल लिए हैं, दालें लिए हैं, घी लिया है जी, बाहर से तो ज़्यादा। कितना फ़र्क महसूस हुआ है आपको आम बाज़ार से यहाँ पर? अच्छा खासा फ़र्क महसूस हुआ है। 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, कितना फ़र्क महसूस हुआ? 20-25 रुपए, 30 रुपए में एक चीज़ के ऊपर? जी जी। पक्की बात है ना? किसी में से 30 रुपए बच गए हैं, किसी में से 10 बच गए हैं, 20 भी बच गए हैं, जैसे रेट मुनासिब अच्छा रेट है। मतलब आपको यहाँ पर आके ये नहीं लगा कि आपका रेट पैसे ज़्यादा लग रहे हैं? कोई नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है, हर इंसान को मिल रहा है। मगर रमज़ान बाज़ार गया हूँ, रमज़ान बाज़ार में 2 किलो चीनी का कह के 1 किलो चीनी दे रहे हैं, वो भी ज़लालत के साथ। आटे के साथ अलग लाइन लगाओ, और फिर क्या कहते हैं वो बेसन वगैरह के अलग लाइन लगाओ, और आटे वो क्या कहते हैं चीनी के साथ लाइन लगाओ, 1 किलो चीनी मिलेगी। मैंने कहा ऐसे लेने पे मैं ली नहीं फिर चीनी। तो यहाँ पर अब कैसे मिल रही है? इधर बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। अल्लाह के बंदे सामान लो, हमारे घर के यानी कि मिसाल के तौर पे साबुन लेना है, वो हमें ऐसे समझो चीनी लिए ना, ये हमें फ्री में मिल गया है। वो ये चीनी लिए ना बाजार में 100 रुपए किलो मिल रही है। ये चीनी की क्वालिटी ठीक है? बहुत अच्छी है, मोटी चीनी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। घर इस्तेमाल करते हैं? हाँ घर इस्तेमाल, हाँ बहुत मीठा होता है। स्क्रीन तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है, पक्की बात है। हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर के इंसानिया के जो लोग हैं वो मौजूद है, इस वाले से इनसे बात करते हैं। तो भाई ये बताइएगा, आटे की शार्टेज का एक खदशा जाहिर किया जा रहा है शहरियों की जानिब से, कभी चीनी किसी जगह पे शॉर्ट होती है, कभी घी कहीं कम आ रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि इन 3 चीज़ों के ऊपर शहरियों का फोकस काफ़ी ज़्यादा है और बाकी चीज़ों को किसी किस्म की शिकायत सामने नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक तो पहली बात यह है कि हमारा 19 आइटम्स के ऊपर वफाकी गवर्नमेंट का यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पैकेज है, और उन 19 आइटम में जो हॉट इशू हैं इस टाइम वो चीनी, घी और आटा है। एक तो ये है कि हमारा उनसे मार्केट से रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली हमारे रीजन का और हर स्टोर का कोटा है, और कोटे के हिसाब से जो डिमांड है वो बेशक ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको ये लाइनें इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। अगर लोग लाइनों में खड़े हैं तो उन्हें इस चीज़ का यकीन है कि उन्हें ये चीज़ मिलेगी, जिसकी वजह से लाइनें लगी हैं। अगर ना मिले तो लोग यहाँ इंतज़ार ही ना करें। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं जी कि आटा लेने में सुबह भी आए हैं, फिर उन्हें बाद में कहा गया शाम में आइएगा, तो शाम में भी नहीं मिला। तो आटे के हवाले से भी उनको इशू पड़ रहा है कि आटे की आपकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए आवाम बार बार आ रहे हैं, ये सस्ता है। जी बेशक, इसमें दोनों जो है वो आंसर शामिल है। एक तो हमारी आटे की क्वालिटी सुपर फाइन है, ठीक है, जो कि हम 1400 का लेकर 800 रुपये में सेल कर रहे हैं। सेकेंडली अभी हमारे साथ एरिया मैनेजर साहब भी मौजूद हैं। इस स्टोर का कोटा 200 बैग्स 20 kg डेली है, लेकिन इसके बावजूद आज इनकी ये डिमांड है कि इसे 400 किया जाए, जिसके ऊपर हमारे रीजनल मैनेजर साहब से जो है वो बातचीत हुई है और इंशाल्लाह इसका कोटा बढ़ाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर एक शिकवा होता था आवाम को कि इनकी चीनी सस्ती ज़रूर होती है लेकिन पतली होती है, बारीक होती है, लेकिन इस दफ़ा चीनी जो है इस दफ़ा अच्छी नज़र आ रही है, मोटी नज़र आ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है कि आपने टेंडर्स अच्छे किए हैं या आपको मिल सस्ती रही है? अच्छा सर, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो पतली चीनी वाला कॉन्सेप्ट है वो जो है वो सिर्फ मतलब हमारे एशिया के अंदर जो है वो नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो चीनी पतली ही इस्तेमाल होती है। जब हमारा TCP से शुगर आती है, हम बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करवाते हैं, तो वो उस वक्त जो है वो चीनी पतली आई थी।
ये हमने TCP से ली थी, उसमें बिल्कुल जो है वो चीनी पतली आई थी, लेकिन हमारी आवाम यहाँ यूज टू नहीं है उसकी। तो अब जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की मिलों से हुआ है और उसके तहत हम जो है वो मोटी चीनी आ रही है और लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। घी आपका बहुत फ़रोख्त होता है, यूटिलिटी के अपने ब्रांड्स जो हैं वो तो शायद अभी नहीं आ सके, जो ब्रांडेड सिर्फ घी है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, तो यूटिलिटी का अपना जो घी है वो कब तक आ जाएगा और जो बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी ज़्यादा मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कब तक हो जाएगी? अच्छा सर, इस सिलसिले में इस तरह से पहले हमारा यूटिलिटी ब्रांड आता रहा और माशाल्लाह से वो बहुत चलता रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि ये यूटिलिटी का शायद अपना कोई वो है और लोग ख़ास तौर पे ताजर बरादरी ये मतलब तासुर देती थी कि ये क्वालिटी में अच्छा नहीं है। तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए हमने हर ब्रांड पे, हमारे 5 ब्रांड्स ऐसे हैं मुख्तलिफ टॉप कंपनीज़ के घी के, जो हमें घी बना के देती हैं, जिनमें मनपसंद वगैरह, मान, दिल और इसके अलावा आप जो है ना वो ईवा वगैरह और डालडा वगैरह के ब्रांड्स खुद हमें पैक करके दे रहे हैं। उनका वो मार्केट में भी अवेलेबल है और हमारे पास भी। आप क्वालिटी का मतलब मुआवजा भी कर सकते हैं। क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक सिर हासिल गुफ्तगू आज हमने यहाँ पर की है। आखिर लोगों का रश यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर एक इतमाद का मज़र है। जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ों की कमी बेशी यहाँ पर भी है, लेकिन ओवरऑल आवाम यहाँ पर मुतमिन हैं, जबकि रमज़ान बाज़ारों में हमें सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई दी थी। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हैं कि आखिर रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और आम बाज़ार में चीनी और जो दूसरी अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमने रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल भी देखी है, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर लगी हुई शहरियों की लंबे लाइनें भी देखी हैं। आटा, घी और चीनी जो कि रमज़ान मुबारक की बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनके लिए इंतज़ार करते भी देखा है। आवाम की शिकायत हैं वो कि बढ़ती ही चली जा रही हैं। रमज़ान बाज़ार में जाते हैं और वहाँ से भी सम टाइम खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आखिर वजूहात क्या हैं? आवाम रमज़ान बाज़ार में जाते हैं तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मुकम्मल वहाँ पर नहीं हो पाता, उल्टा शिकायत लेके वापस आ जाते हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, शहर के अंदर जितने भी रमज़ान बाज़ार हैं आप उनके इंचार्ज हैं, तो बताइएगा कि आखिर आवाम एक मुतमिन नज़र क्यों नहीं आ रही इंतज़ामिया के साथ? आटा है, चीनी है, घी है, दूसरी अशिया हैं, वो कहती है कि ये वो वाला लेवल नहीं है या उनकी क्वांटिटी वो वाली नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए थी। इस वाले से शिकवा करना नज़र आती हैं। आप क्या कहते हैं इस वाले से? जी, एक तो अवाम का मुतमिन ना होना एक नेचुरल फिनोमेना है। इत्मीनान एक ख़ास जाके लेवल पे आता है और डेफिनेटली एक क्यूरियोसिटी, एक बेइत्मीनानी जो एक होती है, बेहतर से बेहतर की तलाश वो जारी रहती है। इंतज़ामिया इसको बेहतर अंदाज में आवाम की शिकायत को, आवाम को बेहतर सहूलियात थ्रू रमज़ान बाज़ार पहुंचाने के लिए मुस्तैद होती है। हमने 3 इसमें रमज़ान बाज़ार लगाए हुए हैं सिटी एरिया में। इसमें सारी जो ज़रूरियात हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके तहत हम इंश्योर करते हैं। लेकिन नो डाउट इसमें पूरी कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन उसमें हमारे पास हर चीज़ की सब्सिडी जो है वो महदूद होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी सब्सिडाइज आइटम की क्वांटिटी जो है वो अनलिमिटेड हो। उसको एक महदूद गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी होती है और उसमें हमारी कोशिश होती है कि जो वो राइटफुल जो तबका है, जो ज़्यादा गरीब है, जो ज़्यादा पिसा हुआ है, उनको ये सब्सिडी पहुँचे। तो लेकिन इस टाइम हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, रमज़ान बाज़ारों के अंदर मैं देख के आया हूँ कि वहाँ पर शहरियों की एक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उसके बाद जाके उनको एक 10 किलो आटे का थैला मिल रहा है, उनको 1 किलो चीनी फ्राहम की जा रही है और ख़ास तौर पर जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी अगर उनको मिल रही हैं तो अगर उसको हम बाज़ार से कंपेयर करें तो रेट सेम आता है। तो आखिर हम उसे 1 किलो चीनी को 2 किलो भी तो कर सकते हैं, ताकि जो बंदा एक दिन आया हुआ है वो 2 दिन 3 दिन अपने घर में बैठ के उस चीनी का इस्तेमाल करे, फिर दोबारा आए। इस तरह तो उसका गुजारा नहीं होता। वो एक दिन चीनी लेता, दोबारा दूसरे दिन फिर आना पड़ता है उसको। बिल्कुल ठीक है। अब बेसिकली जो रमज़ान बाज़ार में चीनी प्रोवाइड की जा रही है वो 63 से लेके 65 रुपये पर केजी है, और अगर मार्केट का इसका रेट देखें तो वो 90 रुपीज़ है। और एट द सेम टाइम इसको गवर्नमेंट ने 2 लेयर्स में ये सब्सिडी देने की कोशिश की है। फर्स्ट लेयर ये है कि गवर्नमेंट ने जो एक 90, 95 और इवन 100 रुपये चीनी थी, उसको गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी के तहत, एक शुगर मिल्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको 83 और 84 और 85 रुपीज़ पे जनरली सारे मार्केट में हर जगह पे चीनी अवेलेबल है।
उससे मज़ीद जाके जो सब्सिडी दी जाती है वो 65 रुपये चीनी की प्राइस को हमने इंश्योर किया है। अब ये 65 रुपये से लेके 85 रुपये भी आप समझें तो ये 20 रुपये की सब्सिडी है, और 1 किलो पे ये बहुत बड़ी तादाद है, और इसका खासा एक फाइनेंशियल जो बोझ है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो महदूद ही रखी जा सकती है, उसको अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता। बाज़ार के अंदर आप लोगों ने जब से एक सख्ती की है और जुर्माने करना स्टार्ट किए हैं, उसका उल्टा रिजल्ट नज़र आया है हमें मार्केट के अंदर कि दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी है। पहले बेशक महंगी मिलती थी, शहरियों को 94 मिलती थी, 100 मिलती थी, कहीं 96 मिलती थी, हर बंदा हर स्टोर अपने प्लान के हिसाब से उसको फरोख्त करता है, लेकिन शहरियों को चीनी मिलती थी। लेकिन जब से आप लोगों ने सख्ती की, अब वो 83 भी नहीं बेचता और उसके पास चीनी होती भी नहीं है, और शहरी जो हैं या तो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इंतज़ार करते हैं, या रमज़ान बाज़ारों में जाके लाइनों में लगते हैं, या फिर इंतज़ामिया का इंतज़ार करते हैं कि वो गल्ला मंडी में चीनी फराहम करे और वहाँ से चीनी आए। तो इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी, इसमें एक तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो हमारे एम्बेड से बाहर हैं, और बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको प्रोविंशियल इंतज़ामिया जो है वो उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, इससे ज़्यादा हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैसे जनरल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं वो उसी को करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है, यहाँ हमारे कुछ इस तरह की भीड़ चाल बनी हुई है कि जब किसी को पता चलता है कि जी अब चीनी शॉर्ट होने वाली है या हो रही है, तो हमें अगर 1 किलो की ज़रूरत होती है तो हम जाके एक थैला लेने की कोशिश करते हैं। ये अनसर्टन एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाती है जो कि इसको मज़ीद इस चीज़ को एग्रीवेट करती है, सिचुएशन को मज़ीद ख़राब करती है। तो होना ये चाहिए कि एक सब्र के साथ इन चीज़ों को जितनी ज़रूरत है उतना लेना चाहिए। लेकिन दुकानदार आज भी शिकवा करते नज़र आ रहे हैं जी कि हम एक थैला लेने जाते हैं, एक बैग लेने जाते हैं, तो हमें लाइन में लगकर 50 किलो का एक थैला लाइन में लगकर लेना पड़ता है। कह रहे जब हम एग्जॉस्ट होकर वापस आते हैं तो हमारा जो सारा का सारा प्रेशर है वो कस्टमर के ऊपर निकलता है। तो उल्टा तमाम तर लोग जो हैं मुतासिर हो रहे हैं। ऊपर से गला मंडी के अंदर सिर्फ 4 आड़ती ऐसे हैं जिनको ये सारा आड़त का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है और कोटा उनके पास आ रहा है, जबकि ये कोटा बाकी तमाम दुकानदारों को भी दिया जा सकता है, बाकी आड़तियों को भी दिया जा सकता है, ताकि लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े और एक बेहतर अंदाज में काम हो जाए हमारा। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसमें जैसे आपने जो एक चीज़ मेंशन की है कि आड़तियों, एक मखसूस आड़तियों को ये कोटा दिया गया है, उसमें हमारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस लॉ की होती हैं, पॉलिसी की होती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें यह है कि जो NTN रजिस्टर्ड एक एक्टिव टैक्स पेयर है वो ही सिर्फ ये कारोबार कर सकता है, ये गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी और रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें वो सेल्स टैक्स रजिस्टर हो, गवर्नमेंट को वो टैक्स दे रहा हो, गवर्नमेंट इससे अपनी जो उनको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ सकती। इसलिए ये FBR की रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो उनके वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिर्फ वही लोग जो हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड है सिर्फ वही ले सकते हैं। एक बात तो ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हम मैक्सिमम जो इस वक्त भी हम 83 और 84 और 85 की चीनी का रेट हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक अरेंजमेंट और सब्सिडी के तहत है और इसकी भी सप्लाई लामहदूद नहीं है। ये भी हम इसको जो 1 थैला 2 थैला बेसिकली तो जनरल मार्केट में जो कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसा कि हलवाई की दुकानें हैं, जैसा कि होटल्स हैं, जैसा कि इस तरह के और स्वीट्स हैं, इनको जब ये चीनी चाहिए होती है तो उनके लिए रेट वही होगा जो कि इस कंट्रोल्ड रेट के अलावा होगा। आने वाले दिनों में चीनी हमें, अगर ओपन मार्केट की बात करते हैं, हमें तो वही 96 या 100 के ऊपर ही मिलेगी, या चीनी हमें समहाउ सस्ती मिल सकती है आपकी किसी कार्रवाइयों के नतीजे में, या हुकूमत की किसी पॉलिसी के नतीजे में, या इंसामिया अपने तौर पर जो मुकामी शुगर मिल्स हैं उनके साथ कोई MOU साइन कर लें? जो लोकल शुगर मिल या लोकल अरेंजमेंट शुगर मिल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती। बेसिकली इसमें ये होता है कि ये एक जनरल इनकी यूनियन है शुगर मिल्स की, और उसको गवर्नमेंट लेवल पे, इवन के सूबाई लेवल पे भी नहीं होती, ये फेडरल लेवल पे ही इसको डील किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। और लेकिन ये होप की जा सकती है, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा यही हैं इंशाल्लाह आसार ऐसे हैं कि ये चीनी 85 रुपीज़ तक ही अवेलेबल होगी आइंदा, और इसमें जो स्टॉकिस्ट हैं वो हम स्टॉक करने की इजाज़त नहीं दे रहे। चीनी की हमने बड़ी बात कर ली है, अब हम आते हैं सब्जियों की जानिब। सब्जियों का ये इशू है कि जो रेट हमें मंडी के अंदर मिल रहा है वही रेट हमें या उससे थोड़ा ज़्यादा हमें रमज़ान बाज़ार के अंदर नज़र आ रहा है। शहरी ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी कि सब्ज़ी नो डाउट फ्रेश तो ज़रूर मौजूद है यहाँ पर, लेकिन जो एक सब्सिडाइज रेट जो ख़ासतौर पे हमें चीनी, घी में या आटे में नज़र आ रहा है, वो सब्सिडी हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रही, सब्ज़ी के अंदर नज़र नहीं आ रही। तो इसकी क्या वजह है आखिर? जहाँ पर गवर्नमेंट बाकी चीज़ों में सब्सिडी दे रही है तो सब्ज़ी के अंदर जो सब्सिडी दे सकती है। बहुत अच्छी बात की आपने, इसमें थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा।
गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी नेसेसरी जो कमोडिटीज़ हैं, जैसा कि उसमें सब्जियां जाती हैं, जो एक आध उसमें फ्रूट होता है, और बाकी हमारी दालें, बेसन और ये चीज़ें ख़ास तौर पे वो जिनका रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस चार्ट पे बिल्कुल उसी तरह से किसी आइटम में 10 रुपये सब्सिडी है, किसी में 15 रुपये पर केजी सब्सिडी है, इवन किसी में 25 रुपये पर केजी सब्सिडी भी मौजूद है। और वो हमारी एक फेयर प्राइस शॉप है, जो इसको हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वही उसको सारा मैनेज करता है, वही उसको सेल करता है, वही उसको परचेस करता है, और सब्सिडी गवर्नमेंट के अंदाज से उसमें दी जाती है। वो भी सारे आइटम्स को वहाँ पे हम सेल करते हैं, और आवाम को ये चाहिए कि वो आम वहाँ पे जो दूसरे सेलर्स हैं, जो दूसरे स्टॉल्स वाले हैं, उनकी बजाय हमारी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से चीज़ें खरीदें, और वो उनको यकीनन मार्केट से 10 से 15 और 20 वो भी तो आपके मॉडल बाजार के अंदर ही हैं, वो भी जो सेलर्स हैं वो भी तो वहीं बैठे हुए हैं ना, तो उनके ऊपर भी तो कोई कानून लाहक होता होगा आपका? जी, वहाँ पे जो हैं उनको हमने कन्विंस करके, उनको हमने मोटिवेट करके, उनको फैसिलिटेट करके हमने 5 रुपये से लेके 10 रुपये पर केजी तक फ्रूट और सब्ज़ी लेसर रेट पे प्रोवाइड करने का हमने डिप्यूट किया हुआ है। लीमू की प्राइस थोड़ी सी हाई इसलिए है कि ये बाहर से आ रहा है। अगर हम बाकी ओवरऑल कंडीशंस की बात करते हैं, तमाम तो जो टेक्निकलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की और जो गवर्नमेंट के इंतजामात हैं, उनके हवाले से एक हमने वाज़ेह बातें यहाँ पर की हैं ताकि आम लोगों को भी इससे पता चल सके, और ख़ासतौर पर जो चीनी की, घी की और जो बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी जो अगर शार्टेज है या रेट के अंदर इजाफा हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, इन तमाम तर चीज़ों को भी हमने यहाँ पे उसका अहाता किया है। उम्मीद है कि आप तमाम को इन तमाम तर चीज़ों की समझ वाज़ेह तौर पर आ गई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान तैयब साहब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ।